Okay, so let's start. Okay, so as we saw yesterday, the formula of heat exchange was, I will suggest you guys to all that take pen and paper with you and write it down with me. It will be easier. Okay, so the formula of heat exchange was del Q equals to, del Q means matlab, the heat exchange in R T ln Vf by Vi. What is what? Del Q matlab heat exchange, and this T is the temperature of any reaction. This Vf is equals to final volume, and Vi equals to initial volume, right? So that was the main formula of heat exchange, del Q equals to nRT ln V final by V initial. But as we all know that PV equals to nRT, means we can also write down the formula in form of pressure. What that will be, we know that P1 by P2 equals to V2 by V1. So we can also write nRT ln pressure initial by pressure final. And also we know that formula of entropy. You know what is entropy? Entropy is the randomness. Yes. And in the formula of entropy was like this: Q by temperature. Also we can write like the del S equals to del Q by temperature. Okay. So by this also we can write, if delta Q equals to nRT ln V final by V initial, so we can write like nR ln final volume by initial volume. Up to this, is it okay? Also, as we know that volume is proportional to n number of moles, right? Because from this PV equals to nRT, we are saying this formula PV equals to nRT. So also you can write like V1 by V2 equals to number N1 by N2. Is V is volume, N is mole, number of mole. So the formula of delta is what that will be, nR ln number of mole final in final state and number of mole in initial state. We can also write like this. Both the forms are correct. Delta is equals to nR ln volume in final condition by volume in initial condition, and also entropy means nR ln mole number of moles in final condition divided by number of mole in initial condition. So up to this much, is it clear? The formula of entropy. So first, just try to understand what are the given and what is the problem. So here it's saying that 5 mole of gas A, 5 mole of gas A, which volume is V1. So A gas है, इसका N1 is 5 mole. इसका वॉल्यूम कितना बोला है? 5 मोल क्या है? 5 मोल इसका N का वैल्यू है, N है इक्वल्स टू 5 मोल. उसका वॉल्यूम बोला है V1. ठीक है. Another gas है 3 मोल of the gas which is B gas, whose volume is B2. तो अदर गैस है B gas, उसका मोल बोला है 3 मोल and volume है V2. Okay, are kept in separate containers, and these two gases are completely transferred to a new container of volume V, assuming isothermal condition. Assuming that isothermal condition and that the work done is only mechanical, the entropy change of the system, पूरे system का entropy का कितना change हुआ है वो पूछा गया है. तो अगर इसको imagine करें situation को, क्या बोला है, तो एक container है, right, जिसमें दोनों गैस है सेपरेटली. नंबर वन गैस इज ए गैस, नंबर टू गैस इज बी गैस. ठीक है. ए गैस का क्या क्या बोला है? 5 मोल है नंबर ऑफ मोल. बी गैस का है 3 मोल. सॉरी,
ए गैस का नंबर ऑफ मोल बोला है 5 मोल, बी गैस का नंबर ऑफ मोल बोला है 3 मोल, इसका वॉल्यूम भी दे दिया है V1, इसका वॉल्यूम दे दिया है V2। एंड अभी और एक कंटेनर ले लिया, बड़ा वाला कंटेनर, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऐसे बोल दिया है, जिसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है V। एंड हमने क्या किया, क्या वी जस्ट पुट द गैस ऑफ ए, put the gas of A from this first container to this larger container, and then again we put the gas of B from this small container to the larger container. So there is an entropy change. There is a separate entropy change for gas A and B, because the particles of the gas A was like this, and then when at the time when we put it from the smaller container to the larger container, then it got some entropy, right? So there was some entropy change for gas A, and there was also some other some this was the B particles, and there was also an entropy change for the gas B. So there was two entropy change for SB, for B gas, and SA for gas A. Okay, so we just have to calculate for the two gases, right? So for gas A, if we start like this, for gas A, तो गैस ए के लिए ए से है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे? Okay, so we know this two formula, right? NR equals to NR is entropy equals to NR ln volume final by volume initial, and also और एक formula हमने सीखा NR ln, okay, so we will use that second formula, right, for SA. So what will be the value of SA? Okay, so just put the formula, put the value here in the formula. Okay, what is the, what are the different values, and just put it here. Okay, if you use this formula only for A gas, what is the mole for A gas? It's 5 mole, so it's 5 R ln. Now what is the final mole, right? So for in the first case, sorry, so this is the first case. So here we had the volume, that mole was in one was, ओके नाउ देखो, ए गैस के लिए पहले कितना था, ए गैस के लिए पहले मोल था 5 मोल, ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं 5 मोल पहले था ए गैस के लिए, but the time we just put this A gas into the larger container, it become, it total mole, their total mole is 5 plus 3, 8 mole, right? So if we are seeing this system from the outside, what will you see? That you will see that first for the A gas, क्योंकि जब तुम दोनों गैस को ये बड़े से कंटेनर में दे दोगे, तो यहाँ पे कोई A गैस या B गैस नहीं है, यहाँ पे एक ही गैस है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ A प्लस B गैस, एंड उस कॉम्बिनेशन का मोल कितना हो गया, उस कॉम्बिनेशन का मोल 8 मोल हुआ, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट पहले कंडीशन में क्या था, ए गैस है, ये सेपरेट है टोटली बी गैस से, एंड उसका मोल कितना है, उसका मोल है सिर्फ 5 मोल, अभी उसका मोल कितना हो गया, 8 मोल हो गया है, ठीक है। तो हाउ यू विल राइट इट डाउन, दैट फाइनल मोल कितना है, फाइनल मोल है 8, so you can calculate it. Okay, so I don't know how many of you are calculating it right now, but the answer should come like 24.4 joule per Kelvin. Okay. So similarly for gas B, I'll be expecting from all of you that just try to calculate it, try to use that great calculator app and try to calculate it. Okay, so again we will use the same formula, NR ln in final by N initial. Here N is 3 mole for B gas, R ln In F 3 by 3. by Ni will be And how much is it? It should come like 19.5. Okay, also I don't know, 8.314 joule per Kelvin into mole. I hope you all know this, the gas constant value, right? It's in SI. Okay, so what was we asked? We were asked that the entropy change of the system, right? Entropy change of the system. तो मैंने जो ऊपर जो सिस्टम दिखाया तुम्हें, ए गैस का बी गैस का, तो इसका हमें टोटल एंट्रोपी कितना चेंज हुआ है वो पूछा गया है।
लाइक हमने कैलकुलेट किया एस गैस के लिए एस है एंट्रोपी चेंज है, बी गैस के लिए एस बी एंट्रोपी चेंज है, हमें टोटल एंट्रोपी पूछा गया है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, इसको हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना होगा एस ए प्लस एस बी, so rest we can calculate, right? Have anyone done it? Can anyone tell me the answer? Okay, so it should come like 43.9. Up to this much is clear? Respond. You guys can also take the screenshot of this question and answer. Okay, so let's just one more time do it. Just try to remember what we read yesterday's class. Okay. So we what do you know that the enthalpy is nothing but the heat exchange at constant pressure. So delta H equals to QP. QP matlab kya hai? Heat exchange at constant pressure, right? And also we know the formula of delta H. We can write it like this. You can see that delta H equals to del U plus P del V, while P is the pressure of the system and del V is the volume change. Delta H is the enthalpy change and del U is the change in internal energy. So you guys all know this, so I haven't written all this again. Okay, so here's the formula for you guys. It's not that much, sorry, um, it's not that much important. This is called Hayes law. You guys will do maths over this. So what is basically say if you have a system of A and if you go to A to B and the enthalpy change for this A to B movement is HA and for B to C is HB and for C to D is HC. But finally, what you do that you went from A to D. Right? So you can also go from A to D directly, and for that enthalpy change can be HD, right? So the formula says basically, so it doesn't depend that it doesn't matter that whatever path you choose, it's whether it's HA, HB plus HC, and then you go from A to D or you directly go from A to D. It just mattered that up to how much you went or where you went. Okay, so based on that, the formula will be HA. The formula will be HA plus HB plus HC equals to HD. This is called Hayes law. Okay. Also, we know the entropy, the formula of entropy is ds greater than or equals to dq by t. So we just did the numerical over it. Okay, here's the important formula is this Gibbs free energy. What does it say? Delta G equals to del H minus T del S. Just try to remember at constant pressure and temperature, this formula is applicable. Delta G equals to del H minus T del S. Also, you can break down the delta H into del U plus P del V. So, what does it say? That the change of Gibbs free energy equals to enthalpy change minus T means temperature, delta S means entropy. Okay, please note down this formula, and also we have done some over it. dP by dt equals to del S by del T. That means the change in pressure divided by change in temperature is equals to entropy change by volume change. Okay, so just write down this important formula, especially this one, delta G equals to del H minus T del S. Okay. So here is another thing that the enthalpy. So actually what this enthalpy says, right? Enthalpy, what is it is actually. So enthalpy is of two types, right? There is the formation enthalpy and another one is the reaction enthalpy. Okay. Okay, what is the reaction enthalpy is of two types, like another one is formation enthalpy, another one is the reaction enthalpy. So कौन सा क्या है? So to suppose एक reaction ऐसा है, एक reaction ऐसा है, calcium oxide plus SiO2 and that is forming CaSiO3. Right. So what is this formation enthalpy? Formation enthalpy, or we just write it down like HF, or also this is the formation enthalpy. So formation enthalpy means कि calcium oxide का अगर formation enthalpy लेना है तो delta HF of calcium oxide. So that means we will write it down like calcium plus oxygen that is forming calcium oxide. So when the compound is forming from its basic element
then it's called formation enthalpy. Okay. So we generally don't use formation enthalpy. We use this delta H formation enthalpy. We can write like for calcium oxide. So this is called standard formation enthalpy. So what does it mean? This is the same thing, like the same as the formation enthalpy, but at reference state. अब ये reference state क्या है? Reference state means 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा एंड प्रेशर होगा 1 बार. तो ये जीरो और ये ओ लगने से ओ रेफरेंस स्टेट में चला जाता है. रेफरेंस state means it's the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 bar and we call it standard formation enthalpy. ठीक है. And also the separate. So formation enthalpy basically means that the formation of that particular compound, but from what this compound is formed, this compound is forming from its basic element. Okay, this is the formation enthalpy or standard formation enthalpy. Okay, so second चीज पे जाते हैं. This is called reaction enthalpy. तो सपोज अगर ये एक रिएक्शन है, ऊपर वाला जो मैंने पहले रिएक्शन लिखा कैल्शियम ऑक्साइड टू SiO2 टू कैल्शियम सिलिकेट, तो इसके लिए हम जो एंथैल्पी यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी. उसको आर से डिनोट करेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, और जो फॉर्म कर रहा है उसको लिखेंगे CaSiO3. तो रिएक्शन एंथैल्पी और CaSiO3 ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी. एंड इसको लिखेंगे डेल्टा H आर, आर से डिनोट करेंगे. तो रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब ही क्या हो गया कि उसको उस बेसिक एलिमेंट से फॉर्म नहीं होना है, उसको किसी भी रिएक्शन से फॉर्म हो सकता है. तो एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी. अब अगर फिर से रिएक्शन एंथैल्पी के ऊपर अगर ये जीरो बैठा दोगे तो हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी. स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी किसमें होता है? डिफरेंस स्टेट में होता है. तो फिर से उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर तुमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, और अगर जीरो नहीं बैठा होगे तो उसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स नहीं है. तो इज इट क्लियर अप टू दिस मच? फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी. ओके, और एक चीज देख लेते हैं. वो है okay, this is reaction enthalpy of any reaction. How do we calculate it? We calculate it always by product minus reactant. Always product minus reactant. It's not only for enthalpy, it's also for entropy. Also it's for entropy, also it's for Gibbs free energy. Always we for the two, we just do this product का enthalpy जो है minus करते हैं reactant का जो enthalpy जो है. Just note it down. Write down this formula. It's not only for enthalpy, it's applicable for entropy, Gibbs free energy, for all. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन का अगर चेंज निकालना है. ओके, सो ओके, we have already discussed this formula, the formula of the del G. Just again we can go through it. Delta G equals to del H minus T del S. But this time what is the change? रिएक्शन. तो अगर किसी भी रिएक्शन का अगर तुम्हें बोला गया है गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, डेल्टा जी आर निकालो, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन, तो उसको तो पता चल गया ये है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन. सिमिलरली दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन. बार बार मैं नहीं लिख रहा. ठीक है, तो हम कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई रिएक्शन दे, अगर बाद में एग्जांपल आएगा तो उससे ज्यादा क्लियर होगा, अभी नहीं देखते इसमें. चलो दूसरा और एक चीज देखते हैं. ये है ओके, सो ये फॉर्मूला शायद सबको पता होगा. डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू.
क्या है इस फॉर्मूला में, कौन सा क्या है? डेल्टा जी मतलब तो गिब्स की एनर्जी है, और गिब्स की एनर्जी है ऑफ एनी सिस्टम और वॉट एवर। डेल्टा जी जीरो मतलब क्या हो गया, मतलब स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी हो गया। स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी मतलब क्या हो गया, रेफरेंस स्टेट में हो रहा है। अब क्या होता है कि हमारा टोटल जो गिब्स की एनर्जी होता है डेल्टा जी, वो सिर्फ डेल्टा जी जीरो नहीं होता, उसमें और एक टर्म इंक्लूडेड रहता है, और उस टर्म को हम बोलते हैं प्लस आर टी एल एन क्यू। इसमें आर तो क्या है, आर तो गैस कांस्टेंट है, टी तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर है, एंड क्यू क्या है, क्यू है रिएक्शन कोशेंट। अब क्या है रिएक्शन कोशेंट? So look at this example. Okay, so if this is any reaction that A and plus B is forming C, so reaction quotient of that reaction will be like, we will write it down like this, that Q equals to C, concentration of C to the power C. And what is small c? Small c is the stoichiometric coefficient. ठीक है, and A B is उसका फेज है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, C का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय A का मोलर कोएफिशिएंट टू द पावर इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, as well as become. So up to this much we know, right? We have studied it. Okay, अब और एक चीज है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में जाता है, so first tell me what is equilibrium for this reaction, whatever I have shown here, A plus B C, what does it mean, what is equilibrium? Okay, so equilibrium simply matlab rate of forward reaction equals to rate of backward reaction. मतलब ये जो सामने जो रिएक्शन जा रहा है, जिस रिएक्शन में सी तैयार हो रहा है, जिस इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर सी से ब्रेक डाउन करके ए प्लस बी तैयार होने लगा, उसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? तो उन दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो अभी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, कि हमने कल ही देखा है, डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन इज जीरो, एंड जो क्यू होता है वो, इसको हम के बोलते हैं, के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के वायर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, एंड नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मूला यही रहेगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के। अप टू दिस मच इज क्लियर? So just let's solve some problem here. The first problem is easy. I hope you all can solve it. Okay. So क्या बोला है इस प्रॉब्लम में, देखते हैं। मेटामॉर्फिक एक रिएक्शन है, द गिब्स फ्री एनर्जी, इट विल बी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, स्टैंडर्ड लिख लो। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज -21 -2.167 किलो जूल, ओके। दैट मीन्स ये क्या बोला है, डेल्टा जी जीरो, इसका वैल्यू है -2.167 किलो जूल में दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन ऑकर्ड इज 360 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बोल रहे हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, then what is the equilibrium constant of the reaction? So what formula we will use? Tell me the formula. हमें निकालने के लिए क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के डायरेक्टली निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? So you all know the formula, delta G zero equals to minus, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब जैसे फॉर्मूला पुट इन सम बन गया, आई होप यू गाइस कैन सॉल्व इट। सिर्फ क्या क्या करना है कि दिमाग में क्या क्या रखना है, ये याद, आर का वैल्यू हम कितना लेंगे, एंड डेल्टा जी जीरो कैसे क्या लिखेंगे, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट।
टेम्परेचर क्या लेंगे, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 63 केल्विन। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, you guys can solve it later, okay? 1.50 का। ओके, सो ये वाला भी एक फॉर्म धीरे फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है, इसमें हम नहीं जाते हैं अभी। यू गाइस कैन सॉल्व, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कैन सॉल्व इट लेटर। धीरे फॉर्मूला पुटिंग। चलो, तो फिर एक अच्छा कुछ देखते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम 10.1 में क्या बोला है? द डेल ऑफ द फॉर्मेशन, द डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा एच एफ दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन व्हाटएवर। किसके इसके लिए? कैल्शियम सिलिकेट का दिया हुआ है, सिलिका का दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, लिख दिया है फ्रॉम कैल्शियम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंटेटिवली -16.35 -911 -635 किलो जूल पर मोल, किलो जूल में दिया हुआ है। द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, ये नहीं होगा, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, मतलब क्या पूछा गया है? कैल्शियम सिलिकेट रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा गया है जब कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका से, ठीक है ना। क्या पूछा गया है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, इससे क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम सिलिकेट। एंड बोला है द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, तो उसका मतलब इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा गया है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो क्या क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन एंथैल्पी है किसका? कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ये बन गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट है, सिलिका रिएक्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, SiO2 प्लस, अब तो दिस मच क्लियर, तो अभी कर सकते हैं ना, वैल्यू दिया हुआ है, कर सकते हैं, सिंपल प्लस माइनस है, so we should move on to the next, okay? So this one इसमें क्या बोलोगे? ये भी बहुत इजी है, जस्ट प्रॉब्लम को समझो ठीक से, ओके। So consider a following equation, calculate the enthalpy change, मतलब फिर से डेल्टा एच का चेंज पूछा गया है। अब द रिएक्शन मतलब डेल्टा एच आर पूछा गया है, कौन सा रिएक्शन में? H2 रिएक्शन क्या है? H2 गैस से फॉर्म हो रहा है H2O लिक्विड, दिस इज द रिएक्शन। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दो रिएक्शन दिया हुआ है। आई होप द रिएक्शंस आर विजिबल हेयर। कौन सा रिएक्शन है देख लो, ओके। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से H2 लिक्विड फॉर्म हो रहा है। सेकंड रिएक्शन भी सेम है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन से H2O फॉर्म हो रहा है, बट वो गैस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन का डेल एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड रिएक्शन का भी एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है। ये दो रिएक्शन हमारे पास है, और हमारे पास और भी एक रिएक्शन है कि इसका एंथैल्पी का चेंज पूछा गया है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है H2 गैस से H2 लिक्विड, इसका एंथैल्पी का चेंज पूछा गया है। एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व इट? पहले ये ऐसे प्रॉब्लम में जब तुम्हारे पास एक रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा गया है एंड you also are given the other reactions enthalpy, so just simply write down all the reactions and then just try to see that how you can go from this two reaction to the फर्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें पहुंचना है, तो जैसे एक ने बोला कि सिंपल प्लस माइनस करने से ही हो जाएगा, ये रिएक्शन ए है, ये रिएक्शन बी है, अगर हम सिंपली A माइनस बी करेंगे तो फिर उससे हो जा रहा है, राइट। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं H2 गैस से H2 लिक्विड फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन हमने लास्ट में जो लिखा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी का चेंज पूछा है, डेल्टा एच आर है, तो और हमें कहाँ से आना है? हमें ये दोनों रिएक्शन से वो आना है।
So अगर हम if we write down simply the first reaction and then the second reaction, if we just simply minus the second reaction from the first reaction, ये first reaction है, second reaction है, अगर A minus B करेंगे तो फिर ये आ जा रहा है ना, इसको गैस इसको लिक्विड, और हम ये कैलकुलेट कर सकता है. Okay, is it okay to everyone? Minus 44.02 kilojoule per mole. Now tell me ये रिएक्शन क्या है, क्योंकि सेकंड में पूछा गया है ये वाला पार्ट, ये वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. क्या है डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है. वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव में एंडोथर्मिक नहीं, नेगेटिव में एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, इसमें एंडोथर्मिक होता है. तो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू अगर जस्ट write it down, enthalpy change का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है then it will be endothermic reaction, otherwise it will be exothermic reaction. Here the reaction is exothermic. Let's write it down. Okay, up to this much is clear. We can move forward. चलो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं. I guess it's easy one, but okay. So calculate the Gibbs free energy of a reaction involving phosphatide. Phosphatide plus quartz एनिस्टराइट, मतलब ऐसे नहीं बोला है तुम्हें, बोला गया फॉस्फेट क्वास एनिस्टराइट से क्या रिएक्शन हो सकता है. उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर दिया हुआ है 900 केल्विन 1 बार प्रेशर, एंड सारे मिनरल का मतलब इंस्टाटाइट का फॉर्मेशन का डेल्टा एच एफ मतलब फॉर्मेशन, और ये जीरो मतलब क्या, स्टैंडर्ड वाला मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर में. ठीक है, सेम एंट्रोपी का भी फॉर्मेशन है, जीरो मतलब क्या, स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो सारे इंस्टाटाइट फॉर्म होने के लिए कितना इंथैल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन लगता है, ये दिया हुआ है. क्वार्ट्ज का भी दिया हुआ है, फॉस्फेट का भी दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी बोला गया है तीनों है, तो तीनों से क्या रिएक्शन बनता है. फॉस्फेट प्लस क्वार्ट्ज टू इंस्टाटाइट, राइट. अगर हम एम जी वाला ले लें, एम जी टू एस आई फोर प्लस एस आई ओ टू, तो बनता है एम जी टू एस आई टू ओ सिक्स. ओके, फॉस्फेट प्लस क्वार्ट्ज गोस टू इंस्टाटाइट एंड इस रिएक्शन अभी क्या बोला है, अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास इंस्टाटाइट का डेल्टा एच का वैल्यू है, डेल्टा एच एफ का वैल्यू है, डेल्टा एस एफ का वैल्यू है, एंड ये रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड ही बोलो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. देखो हमारे पास क्या क्या है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे सिंपली, एंड हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, राइट. प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट क्या है, इंस्टाडाइट है, उसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, सो वी कैन डू इट, राइट. तो कैसे करेंगे. ओके, सो सॉल्व इट विथ मी. 3090, डोंट फॉरगेट द यूनिट. ओके, प्लीज विथ माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जियोकेमिस्ट्री. इस आई टू का दिया हुआ है -19.83, एंड वंस अगेन ये भी दिया हुआ है -2172. सारे का यूनिट क्या है, किलो जूल में दिया हुआ है. You guys can solve it, right? -7.4 किलो जूल में बोला ना. ओके, सिमिलरली वी कैन आल्सो डू दैट डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड वाला कर सकते हैं. इंस्टाटाइट का एंट्रोपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 363.33, 60.33 माइनस फॉस्फेट का भी दिया हुआ है, क्वार्ट्ज का भी दिया हुआ है. फॉस्फेट का कितना है, 258.91 प्लस 109.16 जूल बार केल्विन में है. इसको भी जूल में कन्वर्ट कर देते हैं बाद में.
Can also calculate this delta S का Yes, sir. -7.72. -7.74 जूल में होगा। ओके, तो क्या पूछा गया है? Calculate the Gibbs free energy of that particular reaction which is involving phosphate coerce and steric, मतलब ये रिएक्शन है ना, यानी इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी पूछा गया है। स्टैंडर्ड नहीं पूछा गया है, ये ध्यान में रखना, गिब्स फ्री एनर्जी पूछा गया है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो? डेल्टा जी आर इक्वल्स टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एच आर, ये वाला स्टैंडर्ड वाला आ गया। गैस टेम्परेचर अलग है तो ये डेल्टा जी आर और जीरो नहीं है, ठीक है। वो इस रिएक्शन का इस टेम्परेचर में, अगर इस टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता या 298 केल्विन होता फिर हम लिखते स्टैंडर्ड वाला, अभी स्टैंडर्ड वाला नहीं लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सिर्फ टी का वैल्यू किस में लेंगे? टी का वैल्यू केल्विन में ही है, तो टी का वैल्यू 900 केल्विन पुट कर देंगे इसमें। So after this we can solve it, right? We should move forward. What do you say? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। अगेन मैंने ये लिख दिया है, फिर से देख सकते हो कि डेल्टा जी आर ऑफ एनी रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जी, मतलब स्टैंडर्ड वाला गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एम के, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है ऑलवेज स्टैंडर्ड वाला से, इसलिए प्लस आर टी एल एम के वाला टर्म भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले वाले को। तो क्या पूछा गया है इसमें? You guys can see the question, right? Everyone can see the question. Okay, रिएक्शन दिया हुआ है H2CO3 एक्वस में है, उससे फॉर्म हो रहा है HCO3 माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, right? Okay, and what we have been asked? We have been asked to find out the equilibrium constant K. तो हमें बस K निकालना है। So and what we are given the Gibbs formation energy for every element Gibbs formation energy हमारे पास है। तो अभी हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी आर निकाल सकते हैं, yes or no? क्या होगा? सिमिलरली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है बाइकार्बोनेट, मतलब H2CO3 का है। H2CO3 का कितना है? -623.109 सारे किलो जूल पर मोल पे है, ठीक है। H प्लस का कितना? H प्लस का 0 है, ठीक है, तो ध्यान में रखना H प्लस का 0 है। माइनस -586.77, ये सारा आया किलो जूल पर मोल पे। ट्राई टू सॉल्व इट। तो किलो जूल पर मोल पे वो आ रहा है, तो हम जूल पर मोल पे क्या लिख सकते हैं? 36,399 जूल पर मोल डायरेक्टली होगा। ओके, नाउ व्हाट हैव यू बीन आस्क्ड टू डू? इस डेल्टा के निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। व्हाट फॉर्म? क्योंकि ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में है, सपोज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, तो अब क्या निकालना है? तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हमने क्या सीखा है? इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? क्यू के बन जाएगा एंड उस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। यस और नो एवरीवन? इज इट ओके? So you can just simply put it down all the formula, like डेल्टा जी जीरो का वैल्यू ये है, आर का वैल्यू 81314 ही लेंगे। टेम्परेचर कितना लेंगे? टेम्परेचर कितना लेंगे? टेम्परेचर यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं किया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। टेम्परेचर अलग भी हो सकता था, मतलब 298 केल्विन।
0 के। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे ln k का वैल्यू कितना आएगा 14.659 माइनस 14.659। ओके, हम डायरेक्टली इसको k इक्वल्स टू e टू द पावर भी लिख सकते हैं माइनस 14.659, क्योंकि और अगर हम धीरे धीरे जाना चाहते हैं तो इसको लॉग के लिख सकते हैं माइनस 14.659 बाई 2.303, क्योंकि 2.303 लॉग के ही ln के है ना। एंड इसका आएगा माइनस 6.37। तो अभी हम k का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 6.37। ओके ओके, तो सेकंड का जो प्रॉब्लम है एग्जांपल 2, ये खुद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सेम सिमिलर ही है। इसमें एक्टिविटी ऑफ H4SiO4 इसका सिलिसिक एसिड का इसका एक्टिविटी पूछा गया है, ये सेम ही होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ तो बाद में बोल सकते हो, बट यू गाइस कैन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट। चलो अब मोल कॉन्सेप्ट में घुसते हैं, थोड़ा मोलारिटी नॉर्मलिटी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो उससे पहले आई सपोज सबको मोल क्या है और पता है, बट फिर भी एक बार जस्ट, so can anyone tell me what is mole? What is the definition of mole? What is mole? क्या है मोल? अच्छा, ये वाला एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास अगर 36 ग्राम वाटर हो गया, मेरे पास अगर 36 ग्राम ऑफ H2O हो गया, ठीक है, मीन्स हाउ मच मोल, कितना मोल ऑफ H2O हम बोलेंगे, हाउ मच मोल, टेल मी हाउ मच मोल 36 ग्राम है। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ मोल, ठीक है, वो है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय molecular weight और molecular mass। तो अभी मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है, सारे एक ही यूनिट में रखना, अगर वो मिलीग्राम है तो इसको मिलीग्राम में भी रख देना। ओके, तो मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है यहाँ पर 36 ग्राम। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दो होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना होगा 18 होगा। तो 36/18, ये भी क्या ग्राम में ही होगा, तो क्या बोलेंगे, दो बोलेंगे, तो 2 मोल ऑफ वाटर है, मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 2 मोल ऑफ वाटर हो गया, ठीक है ना। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल क्या फॉर्मूला हो गया कि मोल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देख लेना, नंबर मास ऑफ द सब्सटेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और वेट, कुछ भी बोल लो, ऑफ द सब्सटेंट, ठीक है। तो ये सेम ही मैंने अभी बोला है, ठीक है। अब मास परसेंटेज क्या हुआ, मास पर व्हाट इज द मास परसेंटेज में you can say mass of that element in the compound divided by molecular mass of the compound, ठीक है। लाइक अगर H2O का ले लें और एक एग्जांपल से समझते हैं मास परसेंटेज को। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास H2O है एंड उसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। मास परसेंटेज का फॉर्मूला है दैट mass of that substance in the compound by molecular weight of the compound, है ना, mass of the element भी बोल सकते हो, mass of the element in substance by molecular weight or mass of the substance। ऊपर में हाइड्रोजन है, नीचे वाटर है, क्या होगा, मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या है इसमें 2 into 1, एंड टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है। आइए परसेंटेज में है तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। मास परसेंटेज सबको समझ में आया। Next.
तो मोल का कंसेप्ट समझ में आया, यही जरूरी है, मास परसेंटेज छोड़ो, मोल का कंसेप्ट समझ में आया ना, यही जरूरी है। अभी हम मोलरिटी को समझते हैं, इसको अच्छे से समझना मोलरिटी को। तो क्या है बेसिकली मोलरिटी, बहुत इजीली समझता है मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी सिंपली उसका जो मतलब फॉर्मूला है वही यही है, मतलब जो डेफिनेशन है वो ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी कौन सा क्या है, अभी इस ये वाला डेफिनेशन को देखो ठीक से, इस वाला डेफिनेशन में क्या दिखा रहा है कि इसमें सॉल्यूट की क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सभी को शायद पता है। अगर तुम्हारे पास NaCl है, मतलब सॉल्ट है, और उसको तुमने वाटर में दे दिया, तो ये जो NaCl है वो सॉल्यूट बन गया, एंड वाटर तुम्हारे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारा जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट का जो जितना भी मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब तुम्हारे पास जो टोटल जो सॉल्यूशन हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाकर जो सॉल्यूशन हुआ है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। ओके, एक बार लिख लेते हैं, चलो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में ही लेना है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका यूनिट, ऑलवेज मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ये क्या किस में आएगा, मोल में ही आएगा, बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में आएगा, तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर। सो एक्चुअली मैंने ये सॉल्व कर दिया है, बट इसको सॉल्व नहीं करना था, ठीक है, चलो बस देख ही लेते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो तुमसे पूछा गया था कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaOH है, ठीक है, NaOH मतलब हमारा ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। एंड इसमें वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन है। तो NaOH का जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व हो रहा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं। तो मोलरिटी हमने बस सीखा, मोलरिटी इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब अगर 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH का मोल निकालना है, 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका मोल कितना होगा, 4 ग्राम अगर NaOH का वेट दिया है तो मोल कितना होगा। तो मास ऑफ द सब्सटेंस 4 ग्राम है, क्योंकि 4 ग्राम बोला है। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आ जाएगा, शायद 0.1 ऐसा कुछ आ जाएगा, हमें 0.1 है, 0.1 मोल है, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूट का मोल हमें पता है वो 0.1 है, देख सकते हो इसमें। तो 0.1 मोल आ गया, तो मोलरिटी हम कैसे निकाल लेंगे, 0.1 मोल डिवाइडेड बाय हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है, मतलब वो है 250 ml, बट उसको हमें कन्वर्ट करना होगा ऑलवेज लीटर में, तो हो गया 0.25 लीटर, मतलब मोलरिटी हो गया 0.4 m। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ठीक से देख सकते हो, मतलब ये सबको समझ में आया, मोलरिटी का फंडा, नॉर्मल फंडा सबको समझ में आया। ओके, तो सेकंड ये फॉर्मूला देख लो, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, क्या है ये भी पता ही था, क्योंकि M है इनिशियल मोलरिटी, M2 है फाइनल मोलरिटी है। इनिशियल मोलरिटी में जो वॉल्यूम है वो V1 है, फाइनल मोलरिटी में जो वॉल्यूम है V2 है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये इट विल बी यूज्ड इन योर लैब क्लास एक्चुअली, that later when you guys will do the geochemistry lab, but you guys can note down this formula, it can also come into exam। ओके, मोलरिटी अगर हो गया है तो थोड़ा मोलालिटी समझ लेते हैं। ओके, तो बेसिकली मोलरिटी क्या है, मोलालिटी, तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलालिटी को हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब वो सेम ही है, जो NaOH का जो फॉर्मूला जो पहले वाला जो दिखा है उसमें कितना मोल आ रहा है वो हमें लिखना होगा, नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, बट नीचे वाला हमें लिखना होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड वो भी केजी में, मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट टू इन केजी। तो अगर
पिछले वाला का ही अगर ले ले, NaOH का जो था, NaOH में हमें लिखा ना 0.1 मोल है। अब NaOH क्या है, वो सॉल्यूट ही है, बट वो किस में डिजोल्व है, H2O में। सपोज H2O में उसका है, मतलब बांध बोल दिया 4 kg है उसका वेट, वहां से 4 kg है। H2O यहाँ पे क्या है, H2O है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट। NaOH प्लस H2O ये मिला के तो सॉल्यूशन हुआ ना। तो सिंपली हम मोलालिटी क्या बोलेंगे इसमें, 0.1/4, एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। सिंपली मोलालिटी सबको समझ में आया। तो दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है, बट आई गेस ये सबको पता ही है पहले से, ये नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं आया अभी तक कुछ भी, बट यू गाइस कैन जस्ट सी द फॉर्मूला एंड जस्ट नो दैट हाउ टू सॉल्व नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है ये वाला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्यूटी है, ठीक है, सॉल्यूटी है, ऊपर हर वक्त सॉल्यूटी रहता है, नीचे इधर सॉल्यूशन रहता है और फिर मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट रहता है। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, जस्ट लाइक मोलारिटी। Okay, but ऊपर वाला term that is said that gram equivalent, number of gram equivalent. So what is the formula of number of gram equivalent? The formula of number of gram equivalent is the mass by equivalent mass. So अभी मतलब एक सम से ही समझते नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये समझना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो भी बोला गया है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास, डायरेक्टली मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस और मास बाय इक्विवेलेंट मास। अभी एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किया कितना होगा, मास कितना है, 0.98 है। Okay, can anyone tell me the formula of equivalent mass, but what is the equivalent mass, or how, what we write here, equivalent mass क्या है, what is the equivalent mass, ये वाला पार्ट, equivalent mass क्या है। Okay, equivalent mass है molecular जो mass है डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। व्हाट इज दिस एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर ये हो गया क्या, एसिड में जितना भी H प्लस है वो भी एक्स फैक्टर है, और अगर बेस है उसमें भी जो नंबर ऑफ OH माइनस है, तो नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस, ये है दिस एक्स फैक्टर। तो मुझे बताओ H2SO4 में एक्स कितना लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास उसका है 98 ग्राम है, कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स फैक्टर कितना होगा H2SO4 के लिए, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है पता चल गया, तो जितना भी मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ OH माइनस, तो इक्विवेलेंट मास फॉर दिस एसिड H2SO4 इज 49 ग्राम। ओके, सो अभी इसमें आते हैं, फिर से इसमें बैक करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर H2SO4 कितना लेंगे फिर, क्योंकि 0.98 ग्राम है जो मास है, एंड इक्विवेलेंट मास हमने निकाला 49 ग्राम है, तो 0.98/49, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आएगा। तो अभी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या पता चला, नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अभी ये 0.98 ग्राम H2SO4 का बोला था उस 500 ml सॉल्यूशन में। अभी H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 0.98/49, तो इसमें लिख दिया 0.98/49, एंड उसमें उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो लीटर में लिख दिया, 500 ml बोला इसलिए 0.5 लीटर लिख दिया। Is it clear up to this much? You guys can take a screenshot or see. I guess समझ में आ जाएगा। अगर confusion है तो you guys can ask.
Respond, please. Okay. So other thing is that ppm, it's parts per million. So this is the thing actually. ppm means 1 milligram per liter or 1 gram per meter cube. Okay. Uh, so you guys can write it down that what this ppm means, and also the activity, and the formula of activity is the activity coefficient into molecular concentration. Okay. Activity formula of activity is the activity coefficient to molecular concentration. So एक्चुअली इससे समटाइम्स आता है न्यूमेरिकल, सो ये बस देख लेना क्या है ये वाला पार्ट. So now the equilibrium constant. So see, equilibrium constant is used for a reaction like अगर रिएक्शन है ए से ए एंड ए फेज है, बी एक फेज है, ठीक है, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वाला इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. अगर ये एक रिएक्शन है ए से बी से, ए एंड बी मिलकर अगर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की विल बी दैट द सी का जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी का जो मोलर कंसंट्रेशन मतलब हाउ मच मोल पर लीटर, और हाउ मच मोल पर लीटर, और हम बोल सकते हैं मोलरिटी है सी का जो, उसके ऊपर उसका सी स्मॉल सी मतलब उसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होगा, इंटू इसका जो प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रोडक्ट. और सिंपल वर्ड ऐसे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन के इक्वल्स टू जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या फिर बाय बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रहा है उसका प्रोडक्ट, ठीक है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब जो सी जो फेज है इसका जो कंसंट्रेशन है, एग्जाम्पल से बाद में समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे फॉर्मूला बस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. एंड डी जो फेज है उसका जो कंसंट्रेशन है टू दी पावर उसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय जो ए फेज है, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन में ये वाला है, ए जो फेज है उसका जो कंसंट्रेशन है टू दी पावर ए, एंड जो बी जो फेज है उसका जो कंसंट्रेशन है टू दी पावर उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है. So this is the equilibrium constant. Okay. So actually सॉल्व करते प्रॉब्लम उससे ज्यादा समझ में आएगा. तो देखो ये वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आएगा. क्या है बेसिकली, अगर तुम्हारे पास दो रिएक्शन है, ठीक है, सपोज ऐसा जो दिखा है ए बी से लेकर सी प्लस डी हो रहा है, ठीक है, एंड उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, एंड वो रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर T1 में, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, ये याद रखना, तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता. और तुम्हारे पास समझो और एक रिएक्शन हो रहा है, एंड वो रिएक्शन ऐसे मान लो E प्लस F से जी हो रहा है, एंड उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, एंड उसका टेम्परेचर है T2. एंड अगर तुम्हारे पास ये K1 T1 एंड K2 T2 है, then you guys can write down this formula log of K2 by K1 equals to delta H. delta H मतलब तो एंथैल्पी है, पता ही है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज है. R मतलब वो जो गैस कांस्टेंट है, okay. एंड टेम्परेचर मतलब कि K1 के टाइम पे जो टेम्परेचर है T1, एंड K2 के टाइम पे जो टेम्परेचर है T2. ओके, तो जैसे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ठीक है, आगे बढ़े. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ये बहुत इजी है बट पहले देख लेते क्या है. ओके, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया की क्या वैल्यू दिया हुआ है. एमोनिया का फॉर्मेशन जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हो रहा है वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे जो कंसर्न है वो यही है कि K1 का वैल्यू दिया है, जो ये K1 है, ठीक है, उसका वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁵ एंड वो रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन. अब बोला गया है एंड और अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर को तुम चेंज कर दोगे, यू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसका केल्विन का वैल्यू अलग होगा, तब उसका के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से, ठीक है. तो तब उसका K2 का वैल्यू हो जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है. So we can just directly use that formula log of K2 by K1 equals to
तो बस टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में लेना. So rest you guys can solve it, right? क्योंकि ये R का वैल्यू केल्विन में है तो इस टेम्परेचर को भी केल्विन में लेना होगा. चलो ठीक है. So I think you also can take the screenshot of it and you can solve it later because ये भी simple ही है, बस फॉर्मूला फुटने की है, ये भी सॉल्व कर लेना. ये वाला देखते हैं. द डेल्टा जी जीरो ऑफ अ रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या बोला है? रिएक्शन पहले लिख लेते हैं. Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है 3O4 प्लस 0.5 ऑफ ऑक्सीजन है दैट इक्वल्स टू 3 Fe2O3 एंड इस रिएक्शन का टेम्परेचर बोला है 300 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर भी दिया हुआ है, वो बाद में पता चलेगा लगेगा कि नहीं. 500 वाट. ओके. इस रिएक्शन का क्या बोला है? डेल्टा जी जीरो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है इस रिएक्शन का, बट रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी बट जीरो है, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है इस रिएक्शन का. तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है -40.657 किलो कैलोरी में है. किलो कैलोरी. ठीक है. द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक ऑक्सीजन log FO2 दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर. यानी आइडिया देख, हमें तो ये पूछा गया है log FO2 का वैल्यू पूछा गया है. log FO2 ठीक है, बट हाउ कैन यू सॉल्व इट? मतलब एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला कैन यू यूज हियर? ओके, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है. सो एज वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ डेल्टा स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी दैट इज माइनस RT ln K, राइट? ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ RT ln K. ठीक है, तो अभी बस पुट करते हैं. बट अगर आर किस में लेना, आर का वैल्यू तो 8.314 जूल पर मोल टू केल्विन. तो आर का वैल्यू जूल में है तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करना होगा. तो -40.657 किलो कैलोरी है, तो 10 क्यूब कर दिया, कैलोरी हो गया. एंड 1 कैलोरी प्लस 4.2 जूल है ना, तो जूल में आ गया. ओके, सो द वैल्यू इज हियर -17010 8.314. The temperature is 300 degrees centigrade. Means in Kelvin it will be 573 Kelvin. Also we can write 2.303 into log of K. We can solve it, but what is this log K? Just K का वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट का जो है बाई रिएक्टेंट. तो Ap2O3 का कंसंट्रेशन 1 होता है, क्योंकि जो भी स्टेबल फेज में होता है, ये सॉलिड स्टेबल फेज में है, ये गैसियस फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में. सॉलिड फेज में जो होता है उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ये सॉलिड फेज में इसका कंसंट्रेशन 1 होगा. एंड ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ये हम ऐसे लिखेंगे, फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे F42. एक्चुअली नॉट फुगासिटी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिखेंगे. फिर से ये 1 होगा. बट ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन टू द पावर कॉन्स्टिट्यूटिव कोएफिशिएंट 0.5 लिखेंगे. सो हम ऐसे भी लिखते हैं लॉग ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं. बट ये जो 0.5 है, अगर ये ऊपर चले जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? -0.5 लिखेंगे, है ना? इसको सामने भी ला Yes, सकते sir. हैं, -r. एंड लॉग ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A42 लिख सकते हैं, फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन लॉग ऑफ. मतलब ये इज दिस इज सिमिलर लाइक पीएच. पीएच कैसे लिखते हैं? माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन, है ना?
अगर H प्लस का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हुआ है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन में हम इसको पीएच लिखते हैं, ठीक है। तभी गैस के लिए हम ऐसे फुगासिटी यूज करते हैं, गैस के लिए पीएच नहीं यूज करते, फुगासिटी। सपोज ऑक्सीजन ही वो गैस है तो हम ऐसे लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ ऑक्सीजन का बस कंसंट्रेशन, उसको हम फुगासिटी लिखते हैं। ये दोनों पीएच के जैसे ही सिमिलर थिंग, ओके। तो हम इसको क्या लिख देंगे, और अच्छा माइनस वाला इसमें चला जाएगा क्योंकि माइनस लॉग ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा, उसको लगेगा हम फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो हाफ ऑफ फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन। इज इट ओके अप टू दिस मच? हाफ ऑफ फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन, लॉग के को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ फुगासिटी ऑफ ऑक्सीजन। Is it okay? Then we can put this log के value here, half of fugacity of oxygen, and then we can solve it for fugacity of oxygen, क्योंकि हमें ये वाला पूछा गया था। और log fugacity of oxygen, अच्छा log of fugacity of oxygen वो बाद में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं log of fugacity of oxygen में, ठीक है।